મુંબઈના વિરારની જ્યાં એક કોવિડ હોસ્પિટલમાં આગ લાગતા 13 દર્દીઓના મૃત્યુ થયા। વિરારમાં આવેલી કોવિડ હોસ્પિટલ જ્યાં મોડી રાત્રે 3:30 વાગ્યે આગ ભભૂકી ઉઠી। વિરારની વિજય વલ્લભ હોસ્પિટલમાં ભીષણ આગને કારણે આઈસીયુમાં દાખલ 13 દર્દીઓના મૃત્યુ થયા। 10 ફાયર બ્રિગેડે ભારે જહેમત બાદ હોસ્પિટલની આગ પર કાબુ મેળવ્યો। જો કે આગ પર કાબુ મેળવાય તે પહેલા 13 લોકોના જીવ તેમાં હોમાઈ ગયા। વિરારની કોવિડ હોસ્પિટલમાં મોડી રાત્રે 3:30 વાગ્યે આગ લાગી હતી। હોસ્પિટલના આઈસીયુ વોર્ડમાં દાખલ 13 દર્દીઓના મૃત્યુ થયા। મોડી રાત્રે લાગેલી આગમાં 10થી વધુ ફાયર ફાઇટરે ભારે જહેમત બાદ હોસ્પિટલની આગ પર કાબુ મેળવ્યો। મુંબઈમાં આવેલી વિરારના કોવિડ હોસ્પિટલમાં જ્યાં અચાનક જ આગ ભભૂકી ઉઠી હતી અને આગને કાબૂમાં લેવા છતાં તે પહેલા 10 જીવ તેમાં હોમાઈ ગયા। પોલીસ હાલ ઘટના સ્થળે પહોંચી છે અને પંચનામાથી લઈને તમામ કાર્યવાહી શરૂ કરી છે। મુંબઈમાં આવેલી વિરારમાં જ્યાં મોડી રાત્રે આગ લાગી જેને કારણે લોકો ઊંઘતા ઝડપાઈ ગયા। 13 દર્દીઓ જેઓ આઈસીયુમાં સારવાર હેઠળ હતા તેઓ આ આગનો ભોગ બની ગયા। 13 દર્દીઓના મૃત્યુ થયા અને તેમના પરિવાર પર જાણે આગ તૂટી પડ્યું। મુંબઈના વિરારમાં કોવિડ હોસ્પિટલમાં આખરે આગ કેવી રીતે લાગી તેને લઈને પણ અનેક અટકળો ઉઠી રહી છે। ફાયર વિભાગ તરફથી હાલ કોઈ સ્પષ્ટ જાણકારી નથી આપવામાં આવી। તેમની પ્રાથમિકતા સૌથી પહેલા આગ બુઝાવવાની હતી। આગ હવે કાબૂમાં આવી ચૂકી છે। અન્ય જે દર્દીઓ છે તેઓને પણ શિફ્ટ કરવામાં આવી રહ્યા છે। કોવિડની હોસ્પિટલ હતી જેને લઈને અહીં દાખલ જે કોરોનાના પેશન્ટ છે તેઓને હવે બીજી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી રહ્યા છે। મુંબઈના વિરારમાં જ્યાં આવેલી વિજય વલ્લભ હોસ્પિટલ જેમાં મોડી રાત્રે 3:30 વાગ્યે અચાનક જ આગ ભભૂકી ઉઠી હતી અને આઈસીયુમાં દાખલ 13 દર્દીઓનું મૃત્યુ થયું। મુંબઈના વિરારમાં જ્યાં કોવિડ હોસ્પિટલમાં આગ લાગી આ આગ કેવી રીતે લાગી તેને અંગે કોઈ જાણકારી હજુ નથી મળી, પરંતુ આ પહેલો બનાવ નથી। આ પહેલા ગુજરાતમાં પણ આવા આગકાંડ થઈ ચૂક્યા છે અને મોટી વાત એ છે કે કોવિડ હોસ્પિટલ હતી જેને લઈને જે કોરોનાના દર્દીઓ આ હોસ્પિટલમાં સારવાર હેઠળ હતા તેઓના જીવ તાળવે ચોંટ્યા હતા। અન્ય દર્દીઓને તો ખસેડી દેવાયા છે, પરંતુ જે 13 દર્દીઓ આઈસીયુમાં સારવાર હેઠળ હતા તેઓ આ આગનો ભોગ બની ગયા। આ આગ કેવી રીતે લાગી તે અંગે હાલ કોઈ જાણકારી પ્રાપ્ત નથી થઈ। विजय वल्लभ हॉस्पिटल में जहां आग लगवाने कारण 13 दर्दियों होमाई गया। कितना अफरा तफरी का माहौल रहा होगा? ना है ये आईसीयू में अनएक्सपेक्टेडली फायर ये हुआ है और विद इन 2 मिनट्स पूरा स्मोक उधर होके एक बड़ा फायर ब्रेकअप एक एक्सीडेंटल फायर ब्रेकअप हुआ है। 13 डेथ्स हुआ है। हाँ, अभी 90 और पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में थे। 90 पेशेंट्स 90 अराउंड 90 पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में थे। ओके एंड जो भी अभी जो दूसरे पेशेंट्स को हम लोग ने दूसरे हॉस्पिटल जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उनको तो अभी हम ट्रांसफर कर रहे हैं, वो प्रोसेस चालू हुई है। 3:15 बजे मेरे दोस्त का फ़ोन आया, उसकी सास को विजय वल्लभ में एडमिट किया था, इसलिए उसने मुझे फ़ोन किया जाके देखिए बहुत आईसीयू में बड़ी आग लगी है। इसलिए मैं दौड़ के भाग के यहाँ पे पहुँच गया। देखा तो फायर ब्रिगेड गाड़ी जस्ट आई थी। मैं तुरंत आईसीयू डिपार्टमेंट में गया सेकंड फ्लोर पे, तो सेकंड फ्लोर पे आईसीयू डिपार्टमेंट में आग लगी थी। अंदर जाने का कुछ चांस ही नहीं था, कुछ मौका ही नहीं था अंदर जाने का। बहुत धुआं आ रहा था अंदर से। वहाँ पे 2 नर्स थी, खाली 2-3 नर्स थी और डॉक्टर एक भी डॉक्टर नहीं था वहाँ पे। बाद में फायर ब्रिगेड ने आधे घंटे के बाद आग बुझाई, लेकिन इतना धुआं था कि अंदर कोई घुस नहीं पाए। कायदेशीर कारवाई कोणी नाही अजून काय बघा ना, पोलीस काय सांगतात आम्हाला, तुम्ही थांबा म्हणजे आम्हाला थांबवत आहेत, त्यांच्या विरुद्ध तर काही कारवाई नाही। 3 वाजल्यापासून आम्हाला सांगत नाही काय काय नाही। और इस वक्त हमारे साथ रौनक कुकड़े जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रौनक, इस वक्त वहां पर क्या अपडेट है, क्या हालत है? अभी हम लोगों ने तस्वीरें दिखाई अपने दर्शकों को अस्पताल के बाहर की, किस तरीके का माहौल है इस वक्त वहां पर? जी देखिए, फिलहाल जो पेशेंट्स है अस्पताल में, बाकी उन्हें दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने की प्रोसेस यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। मुख्य तौर पर आपको बता दें कि अस्पताल में जो बाकी पेशेंट थे उनकी भी कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें पास ही के अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। कुल मिलाकर पहले अस्पताल प्रशासन का काम यही लग रहा है कि जो लोग बचे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया जाए और इसी तरह की प्रोसेस जो यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही है। जी रौनक, ये खबर आ रही थी कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है।
जी इस बारे में अब तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन निश्चित तौर पर रात करीबन 3:30 बजे जो आईसीयू में एसी लगा हुआ था उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से आग लगी। इस तरह की प्राथमिक जानकारी जो है वो बताई गई अस्पताल की तरफ से, और अभी उसका इन्वेस्टिगेशन जो है वो फायर डिपार्टमेंट की ओर से चल रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर थोड़ी देर बाद ही इसकी पुष्टि जो हो सकेगी, लेकिन जो प्राथमिक जानकारी वो यही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से एसी में ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद अस्पताल के आईसीयू में आग लग गई। रौनक लगातार बड़ा अपडेट दे रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के लिए बुरी नहीं, बहुत बुरी खबर है। ये दूसरा ऐसा मामला है जहां कोविड मरीजों की मौत हुई है। पहले ऑक्सीजन लीक होने से नासिक में बड़ा हादसा हुआ था जहां मरीजों की मौत हो गई थी, और अब ये खबर आ रही है विरार से, जहां एक कोविड अस्पताल में आईसीयू के भीतर आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई। 13 लोगों की मौत हो गई। जो बचे हुए कुछ लोग हैं उनका इलाज चल रहा है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है, ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। हैरान परेशान परिवार के जो लोग हैं वो पहुंचे हुए अस्पताल के बाहर। वहां पुलिस भी आपको भारी संख्या में दिख रही है। एक तस्वीर सुबह की आपको दिखाई दे रही है और दूसरी तस्वीर उस रात की। ये रात करीब 3:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि आग लगी थी, और किस तरीके के हालात थे आप समझ सकते हैं तस्वीरों से। पालघर के कलेक्टर का इस पूरे मसले पर क्या कहना है, जरा सुनिए। वसई विरार कॉरपोरेशन में प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसमें आईसीयू यूनिट में सुबह 3-3:15 बजे एसी का ब्लास्ट हुआ। उसमें जब ब्लास्ट हुआ तब आग लग गई। उसके बाद 4 पेशेंट और स्टाफ बाहर आया। बाकी 13 पेशेंट जो आईसीयू में थे वो आग की कारण उनका डेथ हो गया। बाकी 4 लोगों को शिफ्ट किया, और जो नॉन आईसीयू के पेशेंट्स हैं वो सब सेफ है। તો મુંબઈમાં વિરારમાં જ્યાં આગ લાગી આ પહેલા નાસિકમાં પણ આવો બનાવ બન્યો હતો અને ઓક્સિજન લીક થવાને કારણે 20થી વધુ દર્દીઓ મૃત્યુ પામ્યા હતા। હવે હોસ્પિટલમાં આગ લાગવાને કારણે 13 દર્દીઓ જે આઈસીયુમાં સારવાર હેઠળ હતા તેઓના મૃત્યુ થયા છે।